السلام علیکم اسٹوڈنٹس، خانس اکیڈمی میں آپ کا خوش آمدید ہے، استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ آج ہم اس ہمارے تعلیمی چینل پر ہمارے جو چھوٹے ننھے منع ساتویں جماعت کے جو طلباء ہیں ان کے لیے ہم جو ہے علم ریاضی کا ویڈیو لے کر آئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اب تک ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر لیا ہوگا اور بیل آئیکن بھی دبا دیا ہوگا، تاکہ آپ کو نئے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی۔ چلیے، سب سے پہلے تو آپ اپنی کتاب جو ہے نکال لیجئے، اور یہاں پر جب آپ کتاب نکالیں گے تو یہاں پر ہم پہلا سبق جو ہے یہاں پر کنسٹرکشن کا ہے، یعنی جسے ہم کہیں گے ہمارا ہندسی عمل ہے۔ تو ہندسی عمل کو نہ کرتے ہوئے ہم جو ہے سب سے پہلے دوسرا سبق ہم پڑھائیں گے، صحیح اعداد کی ضرب اور تقسیم، ہے نا؟ صحیح اعداد کی ضرب اور تقسیم، اسے ہم ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈویژن آف انٹیجرز انگلش میں کہتے ہیں۔ اور میری تمام اردو میڈیم طلباء سے گزارش ہے کہ بچوں، آپ جب پڑھنے بیٹھو تو پڑھتے ہوئے علم ریاضی، خاص کر کے پڑھتے ہوئے تمام اردو ٹرمنالوجی کے ساتھ انگلش کی جو ٹرمنالوجی ہے وہ بھی آپ پڑھیں، تاکہ آپ کو جب آپ ہائر اسٹینڈرڈ میں جائے تو وہاں آپ کو کوئی بھی دقت نہ پیش آئے، ہے نا؟ تو چلیے، آج ہم جو ہے بڑھ رہے ہیں، سبق نمبر 2 ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، ہے نا؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھو، جتنے بھی اعداد کی قسمیں تو آپ نے پڑھی ہی ہے نا؟ ہم نے ہمارے تعلیمی چینل پر آپ کو پڑھایا ہی ہے، تو بالکل وہی چیز جو ہے اعداد کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ مثبت عادت اور منفی عادت مل کر جو ہے وہ صحیح عادت بناتے ہیں۔ آپ نے عددی خط پر دیکھا ہوگا، ہے نا؟ جس میں جیسے میں آپ کو بنا کر دکھا دیتا ہوں، چلیے، ہے نا؟ میں آپ کو جو ہے وہ بنا کر دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے، دیکھو اس طرح سے ایک ایک عددی خط ہوتا ہے نا؟ بیچ میں جو ہے زیرو ہوتا ہے، بیچ میں اس طرح سے زیرو ہوتا ہے، اور اس کے مطلب سیدھے ہاتھ کی طرف مثبت عادت ہوتے ہیں، جسے ہم رائٹ سائڈ کہتے ہیں، ہے نا؟ 4، 5، 6، اس طرح سے مثبت عادت ہوتے ہیں، جہاں پر عادت جو اس جانب جو ہے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے عادت چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں، یعنی زیرو سے چھوٹے۔ زیرو بڑا نمبر ہے، پھر اس سے چھوٹا -1 ہے، اس سے چھوٹا -2 ہے، تو ایسے یہاں پر جو عادت جو ہے وہ چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں، تو یہاں منفی عادت آتے ہیں۔ تو ان تمام عادت کو جو ہے بچوں ہم صحیح عادت کہتے ہیں، انگلش میں اسے انٹیجر کہتے ہیں، ہے نا؟ صحیح عادات کیا کہتے ہیں اسے؟ صحیح عادت، انگلش میں اسے کیا کہتے ہیں؟ انٹیجرز، ہے نا؟ تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ تو ہم انہی تمام مثبت اور منفی اعداد کے ضرب اور تقسیم ہم دیکھنے والے ہیں۔ چلیے، آئیے ہم چلتے ہیں ہماری کتاب کی جانب۔ یہاں پر جو ہے ہم آپ کو لکھتے ہوئے ہم سمجھائیں گے آپ کو۔ دیکھیے، آپ اپنی درسی کتاب کے جو ہے صفحہ نمبر نکال لیجئے، جس میں سبق نمبر 2 شروع ہو رہا ہے، ہم یہاں پر آپ کو لکھ کر سمجھانے والے ہیں، ہے نا؟ صفحہ نمبر جو ہے آپ کا یہ ہوگا 11 ہوگا، صفحہ نمبر کیا ہوگا آپ کا؟ یہ 11 ہوگا۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے، یہاں پر ہم آپ کو لکھ کر بتانے والے ہیں۔ دیکھیے بھائی، جب دو منفی عادات کی جمع ہوگی، ہے نا؟ تو یہ فی الحال جمع، اور کیونکہ چھٹی جماعت میں جو آپ نے سیکھا ہے اس کا اعادہ بھی کرنا ضروری ہے نا۔ یہاں لکھا ہے دیکھو، گزشتہ جماعت میں، یعنی یہ ساتویں جماعت کا ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی چھٹی جماعت میں آپ نے جو سیکھا ہے اس کا تھوڑا سا اعادہ کرنا ہے۔ آپ نے 6 کلاس میں جو ہے صحیح عادت کی جمع اور تفریق کرنا سیکھے تھے، تو تھوڑا سا وہ اعادہ کر لیجیے، یہاں یہ باکسز فل کرنے ہیں۔ تو 7 اور 5 کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے۔ تو 5 اور 7 جو ہے یہ مثبت صحیح عدد ہے، 5 اور 7 کیا؟ یہ مثبت صحیح عدد ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے مثال نمبر 2 میں 10 مثبت عدد ہے اور 5 جو ہے منفی عدد ہے۔ تو جب بھی اس طرح سے عدد کا جب ہم جمع کریں گے، جس میں سے ایک عدد جمع میں ہے، ایک عدد نفی میں ہے، تو عمل نفی کا ہوگا۔ تو 10 نفی 5 ہو جائے گا، تو 10 میں سے 5 جائے گا تو کتنا بچے گا؟ 5 بچے گا، ہے نا؟ اور یہاں پر تیسری مثال میں نفی 4 جمع 3۔ اب نفی جو ہے نفی 4 جو ہے یہ صحیح عدد ہے، منفی صحیح عدد ہے، اور 3 جو ہے یہ مثبت صحیح عدد ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں جمع کا عمل ہونے والا ہے، لیکن بڑے عدد کی علامت نفی کی، اس لیے نفی ہوگا۔ تو 4 میں سے 3 جو ہے نفی ہو جائیں گے، تفریق ہو جائیں گے، تو یہاں پر آپ کو نفی 1 ملے گا۔ اب نفی 1 اس لیے ملے گا کیونکہ 3 اور 4 میں سے جو ہے 4 بڑا ہے اور اس کی علامت نفی کی ہے، اس لیے ہم نے 1 کے آگے نفی لگایا ہے۔
है ना। अब देखो यहाँ पर मिसाल नंबर 4 में दो मनफी आदाद है, दो मनफी आदाद है, -7 और -2। दोनों का जो है जब हम जमा का अमल करेंगे तो 7 और 2 क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, और ये नफी 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नफी 9 हो जाएगा। तो मस्बत आदाद की जमा और मनफी सही आदत की जमा ये आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बुनियादी चीज़ है। अगर ये आपको आ गई तो आगे के जो चीज़ें हैं, यानी 7वीं क्लास में अभी ये जो सबक है हम करने वाले हैं, इसके अंदर आपको आसानी होगी। तो ये बेसिक, ये बुनियादी चीज़ का आपका जान लेना निहायत ही ज़रूरी है। अब देखिए दो मस्बत सही आदत है और दोनों के बीच में नफ़ी का अमल होने वाला है। देखो यहाँ पर नफ़ी की अलामत है, तो यहाँ पर 8 में से 3 को हम नफ़ी कर देंगे तो 5 बचेगा, है ना। तो 5 जमा में आएगा। क्यों जमा में आएगा, क्योंकि 8 के आगे जो है जमा की अलामत है, इसलिए जो है नफ़ी का अमल होगा, लेकिन अलामत यानी जो साइन है वो जमा की होगी। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 8 मस्बत सही अदद और 3 मनफी सही अदद है, दोनों के बीच में नफ़ी का अमल हो रहा है। तो इस में क्या होगा कि 8 नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, नफ़ी और नफ़ी क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, तो 8 और 3 हो जाएंगे 11। तो इस तरह से आपको जो है 11 यहाँ पर अदद मिलेगा, है ना। तो ये जो बॉक्सेस है आपको फिल करने हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे। तो माय डियर स्टूडेंट, अगली मिसाल अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या दिया गया, जेल में दिए हुए हर अमल का जवाब 3 आए, इस तरह खाली कौसैन में मुनासिब अदद लिखिए। मतलब यहाँ पर हमको जो आदाद दिए गए हैं उसमें ऐसा कौन सा अदद हम जमा करें या तफरीक करें, है ना, जिससे हमको यहाँ 3 मिल सके। देखो यहाँ बीच में 3 लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो नंबर है हम यहाँ सॉल्व करेंगे, नफ़ी 6 में हम ऐसा कौन सा अदद जमा करेंगे कि हमको जमा के 3 मिले। क्या मिले, जमा के 3 मिले। तो जाहिर है 6 से बड़ा होना चाहिए वो नंबर अदद, ताकि हमको जमा में 3 मिले। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 9। 9 में अगर हम 6 नफ़ी कर दें तो हमें जमा के 3 मिलेंगे। इसी तरह से 4 में से ऐसा कौन सा अदद माइनस नफ़ी करेंगे कि आपको 3 मिलेंगे, तो वो अदद होगा 1। 4 में से 1 जाएगा तो 3 मिलेगा, है ना। इसी तरह से 7 में ऐसा कौन सा नंबर आप जमा करेंगे तो आपको 3 मिलेगा, तो वही वो है नफ़ी 4। नफ़ी 4 अदद अगर आप जमा करेंगे तो 7 नफ़ी 4, 7 में से 4 चले जाएंगे तो 3 बचेंगे, है ना। तो इसलिए नफ़ी का 4 हमें उसमें जमा करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही बुनियादी चीज़ है बच्चों, है ना। इसके बाद अब यहाँ आते हैं -5 के अंदर से कौन सा अदद हम नफ़ी करेंगे कि हमको 3 मिलेगा। तो जाहिर है हमको यहाँ पर जो है 8, 8 जो होगा नफ़ी 8, नफ़ी 8 जो है हमें नफ़ी करना पड़ेगा यहाँ पे। तो नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा और 8 में से 5 चले जाएंगे तो यहाँ पर 3 हमें हासिल होगा। तो नफ़ी 8 यहाँ पर तफरीक करना होगा, नफ़ी 8 को यहाँ पर तफरीक करना होगा, यानी माइनस करना होगा। इसी तरह से अगली मिसाल में अगर आप देखेंगे यहाँ पर नफ़ी 8 में ऐसा कौन सा नंबर हम जमा करेंगे कि हमको 3 मिले, तो भाई वो है जमा 11। क्योंकि 8 में 3 जमा करते हैं तो 11 होते हैं। अगर 8 नफ़ी 8 में से अगर 11 निकाल देंगे तो देखो 3 मिल जाएंगे हमें। तो इस तरह से 11 हमें यहाँ लिखना होगा। अब आप यहाँ आखिरी मिसाल में सोचें, 9 में से ऐसा कौन सा अदद हम तफरीक करें कि हमको 3 मिले। तो जाहिर है वो 6 अदद होगा, जमा का 6, यानी जमा मस्बत सही अदद है, ये हमको नफ़ी करना होगा, तब जाके हमें 3 मिलेगा। तो इस तरह की जो मिसालें हैं आपके इम्तिहान में आपको पूछी जा सकती है ना, वेब डायग्राम की शक्ल में या शजरी खाका मुकम्मल करने के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं हमारे जो है, अब हमें सही आदत की ज़रब हमें सीखना है। इसकी कुछ मिसालें हैं जो आपकी किताब में, दरसी किताब में दी गई हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं नफ़ी 4 यानी मनफी सही अदद है नफ़ी 4, इसे पहले ज़ीरो से ज़रब करा किया गया है। तो आप एक बात याद रखें, किसी भी अदद को, चाहे वो मस्बत सही अदद हो चाहे वो मनफी सही अदद हो, अगर उसे ज़ीरो से ज़रब किया जाएगा तो आंसर ज़ीरो ही आएगा, आंसर ज़ीरो ही आएगा, है ना। ये आप याद रखें। मनफी 4 और जमा 1 अगर ज़रब करेंगे तो मनफी 4 ही आएगा, है ना। यानी अगर कोई मनफी सही अदद है, अगर उसे आप किसी मस्बत अदद से ज़रब कर रहे हैं तो मनफी में ही जो है जवाब आएगा आपका। तो ज़रब करते वक्त जो है अलामत अगर किसी एक अदद की नफ़ी होगी तो नफ़ी में ही जवाब आएगा। तो बहुत ही ध्यान से आप जो है सुनते हुए इस चीज़ को करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने जो है हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर अगर आप देखेंगे नीचे की जानिब नफ़ी 4 मनफी सही अदद है, और इसके साथ में अगर हम मनफी सही अदद से ही अगर इसे ज़रब करें तो हमें जो जवाब होगा वो मस्बत में मिलेगा, मस्बत सही अदद में मिलेगा, है ना। देखो -4 को जब -2 से ज़रब किया जा रहा है तो 4 दूनी 8 हो जाता है, और नफ़ी नफ़ी जो है जमा हो जाता है। तो ये जो एक चीज़ है जो आपने 5th क्लास में पढ़ी होंगी वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ हम बताएंगे कि नफ़ी और नफ़ी वाले जो आदात का जब ज़रब होता है तो जवाब जो आता है आपको वो जमा में आता है। जवाब जो आता है वो जमा में आता है, किस में आता है, मस्बत में आता है। इसी तरह से अगर कोई अदद एक नफ़ी में है और उसका ज़रब अगर हम कर रहे हैं किसी जमा वाले अदद से, अगर उसका ज़रब हम कर रहे हैं किसी जमा वाले अदद से, तो ये क्या हो जाएगा, नफ़ी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, नफ़ी में जवाब आ जाएगा। माफ़ कीजिएगा, ये जो हमारा स्केच है, ये टच पैड है, थोड़ा सा लैग हो रहा है, थोड़ा सा रुक रहा है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगला वीडियो जो है हम अपने बोर्ड पर जो है रिकॉर्ड करके आपको बताएंगे। तो फिलहाल आज जो है आपने सही आदात की ज़रब सीखी, उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे ही मज़ीद जो है मिसालें लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तो तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में, अपने सहेलियों में जो है इसे शेयर कर दीजिए। हम इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में एक आगे के टॉपिक के साथ और मशकी सवालिया हल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खान अकेडमी के साथ। शुक्रिया।